आओ दोस्तों, आज हम मिलेंगे विलियम शेक्सपियर जो इंग्लैंड के नेशनल पोएट है। उन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं। उसमें से टेम्पेस्ट नाम का जो प्ले है वो आज हम देखेंगे। टेम्पेस्ट में एक बहुत मजबूर पिता जो जादूगर भी है, प्रॉस्पेरो एंड उनकी लड़की जो मिरिंडा है, उनकी स्टोरी आज हम देखने वाले सुनने वाले हैं। तो आप इंजॉय कीजिए, पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। The Tempest, Act 1, Scene 2. The Island. In front of Prospero's cave, Prospero enters, followed by Miranda, his daughter. Father, did your magic raise this storm at sea? If so, please make it stop. I have done nothing harmful. I've only done what is best for you. You, my daughter, who doesn't know anything about where you came from or who you are. I never thought of wanting to know more. It's time I let you know. Give me a hand, removing my magic cloak. She helps him remove the cloak, and he puts it on a rock. Sit down. Now I'll tell you more. Sometimes you've tried to tell me, but you've always stopped. It's left me wishing you'd tell me more. It's time now. 12 years ago, I was the Duke of Milan, a powerful prince. What happened to make us leave? Was it good or bad? Both. Wicked things happened to make us leave, but we were also lucky. My brother, your uncle, was named Antonio. Next to you, I loved him more than anything else in the world, and I trusted him to manage my kingdom. I left the business of government to him, but I was so busy reading my books and improving my mind that I neglected everything else. Antonio started to think that he was the duke, because he was carrying out my duties. Oh, heavens! The king of Naples, an enemy of mine, listened to Antonio. They decided that I and my family should be forced to leave our country. They raised an army and, one night, opened the gates and hurried us through. Why didn't they kill us? Fortunately, Gonzalo, a noble man in charge of getting us out, gave us some food, fresh water, fine clothes, and other things to keep us alive. Out of the kindness of his heart, knowing I loved my books, Gonzalo also gave me books from my library that I prized more than my kingdom. Thank heavens! And now, because I can't stop thinking about it, what is your reason for making this storm at sea? Oddly, good luck has brought my enemies to us. Ask no more questions. He puts his hand over her eyes. You feel sleepy. Miranda falls asleep, hypnotized. Prospero calls quietly. Come here, servant. Come. I'm ready now. Approach, my Ariel. Come. All hail, great master. I come to answer your call, be it to fly, to swim, to dive into the fire, or to ride on the clouds. Ariel and all his fellow spirits are at your command. Spirit, have you done what I ordered you to do? Everything. I boarded the king's ship. With fire I struck terror. With lightning flashes, fire, explosions, and bold waves, I took care of everything. Everyone on board was afraid. The king's son, Ferdinand, was the first one to jump overboard. But are they safe? No one was hurt. And just like you ordered, I've scattered them around the island in groups. I myself landed the king's son. What have you done with the ship? The ship is safely in the harbor. I hid it in a deep cove. You have carried out my orders exactly. But there's more work to do. तो दोस्तों, आपने इंग्लिश में टेम्पेस्ट, ये जो पहला एक्ट था, पहला सीन था, वो देख लिया है। वो इंग्लिश में था। मुझे यकीन है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए मैं हिंदी में बताती हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपके लिए इतनी सारी हार्ड वर्क कर सकती हूँ तो आप थोड़ा सा हार्ड वर्क कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो आओ दोस्तों, आज हम शेक्सपियर का टेम्पेस्ट का पहला सीन देख लेते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये प्रॉस्पेरो और उनकी लड़की मिरिंडा है, जो उस प्रॉस्पेरो उस मिरिंडा को बता रहा है कि आज जो सी है बहुत ही आवाज़ कर रहा है। आवाज़ है ना, मिरिंडा को बिल्कुल मतलब उसको बहुत तकलीफ़ हो रही, तो वो पिताजी से बोलते, आज ये समुंदर की आवाज़, ये समुंदर में इतना तूफ़ान क्यों है पापा, मुझे पता है आपने ही किया है। तो प्रॉस्पेरो बोलता है कि नहीं बेटा, ये कोई हार्मफुल नहीं है, जो भी है ये अपने लिए तो बेस्ट ही है। और तुमको पता है तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कैसी हो, को क्या चीज़ हो तुम ऐसे। तो वो बोलती है, देखो पिताजी मैंने आज तक तो कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन आपको बताना है तो आप बता सकते हैं। तभी प्रॉस्पेरो मतलब पिताजी उसको बताते हैं कि मेरे पहले जो मैंने ये जो क्लॉक पहना है ये निकाल के रख दो, फिर बाद में मैं तुमको बताता हूँ। तो उसको हेल्प करती है मिरिंडा निकालने में, और वो एक रॉक के ऊपर बैठ जाती है और फादर जो है वो कहानी बताना शुरू कर देते हैं कि वो यहाँ पे जो आइलैंड है जो बिल्कुल ही दूर है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पे क्यों। तो वो बोलने शुरू हो जाते हैं कि ये 12 साल पुरानी बात है, जब मैं एक मिलन नाम का जो किंगडम था वहाँ का राजा था, बहुत पावरफुल था। तो मिरिंडा पूछती है, फिर आप यहाँ पे कैसे आ गए, आपके साथ ऐसा कौन सा बुरा, नहीं तो भला क्या हुआ होगा कि आप। तो प्रॉस्पेरो बोलता है कि मेरे साथ ना बुरा भी हुआ है और अच्छा भी हुआ है। मेरा एक भाई था एंटोनियो, वो बहुत चालाक था, मैं बहुत उससे प्यार करता था और मुझे दुनिया में उसके जैसा प्यारा कोई भी नहीं था। वो तुम्हारा अंकल है। और मुझे बुक रीडिंग का बहुत मतलब बुक रीडिंग बहुत पसंद था, तो मैं बुक रीड करता था और मेरी सारी जो किंगडम की सारी परेशानियाँ जो भी काम रहता था वो एंटोनियो करता था। इसीलिए मैं बुक ही रीडिंग करने में बैठ जाता था और मैंने कभी देखा भी नहीं बाहर कि क्या चालू है क्या नहीं। इसका फ़ायदा एंटोनियो ने, और ये जो किंग है प्रॉस्पेरो, फिर धीरे धीरे इसको निकालना शुरू कर दिया। इसके जो नेपल्स का जो राजा था, जो इसके इनिमी थे, उन लोगों को ये सारी चीज़ें एंटोनियो ने बता दी कि ये राजा तो कुछ नहीं करता है, अब मुझे ही सब कुछ करना है। और फिर ऐसे हालात आ गए थे कि जब मिरिंडा छोटी सी बच्ची थी तो उसको गोद में उठा के प्रॉस्पेरो कैसे तो अपनी जान बचा के भाग उठा एक दिन, एक रात को। और फिर मिरिंडा उससे पूछती है कि फिर तुमको मार नहीं डाला किसी ने। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे गोंज़ालो नाम का जो एक अच्छा आदमी था उसने एक छोटी सी बोट ला के दी और मुझे कुछ खाने के लिए, इवन मेरे जो लाइब्रेरी के जो मेरे पसंदीदा बुक्स थे, पैसे थे, फल थे, वो सब मेरे लिए ला के दे दिए और मुझे बोला कि अब तुम जाओ। मेरे जो प्यारे बुक्स थे वो मुझे मेरे किंगडम से भी ज़्यादा प्यारे थे और मैं अब यहाँ पे आ गया। तो मिरिंडा पूछती है कि अच्छा, ओ तो और फिर अभी जो आपने ये समुंदर में इतना सारा तूफान आज निकाला है वो क्यों है, ये अच्छी है कि गंदी बात है, और आप कैसे अपने एनिमीज़ को अब कैसे क्या पढ़ाने वाले, कैसे उनका बदलाव लेने वाले हैं। तो प्रॉस्पेरो उसको बोलता है मिरिंडा को कि बेटा अब तुम्हारा सोने का टाइम हो गया। वो उसको एपेनाइट मतलब उसको सम्मोहन करके उसको सुला देता है और तभी अपने एनिमीज़ के बारे में, मैं किसी एनिमीज़ को कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा अच्छे से। तो वो अपना जो सर्वेंट रहता है एरियल, उसको बुलाता है और उसको बोलता है कि आई एम रेडी नाउ। तो एरियल आ जाता है और एरियल बोलता है कि ऐसे कभी होगा मास्टर, तुमने मुझे बुलाया और मैं नहीं आऊँगा? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उड़ सकता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, डाइव करता, फायर, मैंने सब जो तुमने जो चीज़ें बताई थी वो मैंने सारी चीज़ें मास्टर कर दी है। तो प्रॉस्पेरो उसको बोलता है कि स्पिरिट, जो मैंने बोला था सच में तुमने किया? तो एरियल उसको बोलता है कि हाँ, जो शिप आ रही थी तुम्हारी किंग की, नेपल्स के किंग की, उस जहाज़ को मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है, उसको बोर्डेड कर दिया है और बाद में उस शिप को थोड़ा सा आग भी लगा दी है, थोड़ा डर पैदा करने के लिए मैंने बिजली भी, कड़कती हुई बिजली कर दी। तो ये सब देखने के बाद जो उनका किंग का बच्चा था, बेटा था फर्डिनांड, उसने वहाँ पे सबसे पहले जंप कर दिया, लेकिन
लेकिन क्या, तो प्रॉस्पेरो उसको पूछता है उसको कुछ हुआ तो नहीं। तो स्पिरिट मतलब एरियल उसको बोलता है कि नहीं, किसी को कोई हार्म नहीं है, सब इधर उधर हो गए थे, पर मैंने उनको आराम से आइलैंड के एक ही ग्रुप में ला के रख दिया है। वो आइलैंड पे ही है, उनकी शिप भी एक जगह पे मैंने सेव करके, हाँ, छुपा के रखी है। आप उसकी बिल्कुल केयर मत कीजिए। और फिर प्रॉस्पेरो बोलता है कि मैंने जो तुमको काम दिया था तुमने सब कर दिया है। I gave you my heart.